Hi everyone, this is Sunil Katke from Kotak Securities. I would like to welcome all of you for one more webinar on commodity derivatives. This is a part of our Options Wednesday webinar series where we talk about different asset classes and try to cover different topics to educate the audience and help them in taking their investment or trading related decisions in a वाइज मैनर। आज का जो वेबिनार है ये आधे घंटे के दौरान हम कवर करेंगे। ये प्रेजेंटेशन हम आधे घंटे के दौरान कवर करेंगे और इस दौरान आपके अगर कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद हम एक 10-15 मिनट के लिए Q&A सेक्शन भी रखेंगे। तो whatever questions you may have, you can make a note of it and maybe you can type it in our comment box, so that once this presentation is over, we will talk about those questions in the Q&A session. So without further ado, let's get started. Can we have the presentation, please? Yeah, if we can have the presentation in full screen mode, I think it will be more clearly visible to our participants. Yes, thank you very much. As today's session, we will talk about decoding the opportunities in commodity derivatives. इसका मतलब यही है कि commodity derivative market में क्या opportunities हैं उसके बारे में हम समझेंगे. So this webinar is meant for those people who are relatively new to commodity derivatives. If you are an active trader in commodity from last 1, 2, 3 years, maybe आपको लग सकता है कि ये presentation का content थोड़ा basic है. But we have a lot of audience, a lot of participants who are very new to commodities and they would like to understand more about what commodity markets are, when it comes to derivative segment is concerned. So उनके लिए हमने सोचा कि थोड़ा हम basic cover कर लेते हैं पहले. We will talk about the basics of commodity derivatives so that we can have entire audience connecting with us on what we are talking about. And then जैसे हम slides में आगे चलते जाएंगे, we will also talk about the best practices और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस मार्केट में, जो आप एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर या हेजर या फिजिकल डिलीवरी लिंक्ड अगर आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं तो इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे. So before I start with the presentation, I would like all of you to go through the disclaimer of this educational session that we have. The disclaimer talks about आपको इस presentation में जो भी हम जानकारी दे रहे हैं एक educational point of view से बता रहे हैं, तो इसको as a recommendation के तौर पे नहीं देखना चाहिए. So that is the purpose of this disclaimer. Request you to kindly go through the same. And if you have gone through the disclaimer, let's start with our presentation. Here goes the first slide. Like I mentioned, to start with, we wanted all of you to be aware of what commodity derivative is. In order to understand what commodity derivative is, we just need to understand what commodities are all about. Commodities का मतलब simple, कोई भी raw material अगर उसका एक value है, उसको हम commodities बोलते हैं. आप आपके दिनचर्या में commodities को trade होते हुए देखेंगे. आप फाइनल फिनिश्ड गुड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर आप एक मोबाइल फोन की बात करते हैं तो उसको कमोडिटी हम नहीं कहेंगे, उसको हम एक फाइनल फिनिश्ड गुड बोलेंगे, फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलेंगे. बट द रॉ मटेरियल्स दैट वेर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दैट फोन, like you will need a lot of aluminium or copper or plastic or glass. These are the raw materials that are used to manufacture an electronic gadget, be it a phone or any electronic item that we talk about. These raw materials can be called as commodities. वो रॉ मटेरियल्स को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम एक फाइनल फिनिश्ड गुड के तौर पे कंज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कमोडिटीज का मतलब ये है कि कोई भी रॉ मटेरियल जिसका एक वैल्यू है, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल जो है एक फिजिकल मार्केट में ट्रेड होते हैं. इन्हीं रॉ मटेरियल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे भी ट्रेड होते हैं, तो उनको हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं. तो जो मार्केट जो फिजिकल मार्केट में रॉ मटेरियल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम स्पॉट मार्केट या फिजिकल मार्केट बोलते हैं, और उन कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर डिजिटल एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे हैं उनको हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. सो आई थिंक इससे आपको डिफरेंस फिजिकल मार्केट का और
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का समझ में आएगा। कमोडिटीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स बेसिकली, एंड वो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। Precious metals, industrial metals, energy, and agricultural, commodities. So when we talk about precious metal, as the name itself suggests, we are talking about gold or silver. Even platinum is a part of precious metal, but we do not have platinum actively trading on popular exchanges. So right now, the names that we have mentioned, again, they are used as an example only. We are not trying to recommend these instruments as such, but for better understanding of the audience, we have taken some examples. So gold और silver जो है हम एज ए प्रेशियस मेटल के कैटेगरी में देख सकते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स में हम कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये हम देखते हैं। एंड देन एनर्जी प्रोडक्ट्स में हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को हम देखते हैं। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में टर्मरिक, जीरा, गुआर सीड, अलग अलग कमोडिटीज जो हैं हम देखते हैं। पॉपुलर कमोडिटीज के बारे में तो हमने जान लिया। वी वुड आल्सो लाइक टू नो अबाउट व्हिच आर द एक्सचेंजेस दैट आर पॉपुलरली ऑफरिंग कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म टू इट्स पार्टिसिपेंट्स। तो जैसे हमने नाम लिखा हुआ है, MCX, NCDX, even NSE and BSE, they offer commodity derivative products to their participants. So MCX obviously multi commodity exchange हम बोलते हैं, जो कि popularly known for its energy and metal related transactions. NCDX is popularly known for the agricultural commodities transactions. NSE और BSE पे भी आपको आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ कमोडिटीज ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। तो लाइक आई मेंशन्ड, एनी रॉ मटेरियल व्हिच हैज अ वैल्यू कैन बी कॉल्ड एज कमोडिटीज, एंड कमोडिटीज जो हैं फिजिकल मार्केट में भी ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, और उन कमोडिटीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जिनको हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड होते हैं। और हमने उनके ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में भी समझा, प्रेशियस मेटल, इंडस्ट्रियल मेटल, एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज विद द रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स। मूविंग अहेड विद द प्रेजेंटेशन, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हमको एक एग्जांपल के तौर पे समझना है, इफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लुक लाइक, we have highlighted certain examples. Again, the scripts that we have named here, they are only to be looked at as a example and not as a recommendation. तो यहाँ पे हमने as एक example लिया है क्रूड ऑयल। So crude oil again is a raw material. इसका अगर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखता है अगर वो देखें, तो ये टेबल में आपको एक एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। तो द कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय स्टैंडर्डाइजिंग द क्वांटिटी। तो यहाँ पे उसको हम लॉट साइज के हिसाब से देखते हैं। तो पीपल हु आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन इक्विटी, दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो लॉट का मतलब मिनिमम क्वांटिटी दैट यू कैन बाय एंड सेल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रूड ऑयल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉट साइज है 100। सो व्हाट इज 100? सो 100 यूनिट्स बोल सकते हो। तो एक यूनिट का मतलब एक बैरल हो गया। तो 100 यूनिट्स या 100 बैरल्स आप बोल सकते हो, जो कि मिनिमम क्वांटिटी आप क्रूड ऑयल में बाय या सेल कर सकते हैं। देयर इज अ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट आल्सो ऑफ क्रूड ऑयल व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच कैन बी कॉल्ड एज क्रूड ऑयल मिनी। अब क्रूड ऑयल मिनी में क्वांटिटी का फर्क है, उसका लॉट साइज जो है 10 यूनिट्स का है या 10 बैरल्स का है। So when we talk about derivative contracts, now these are the contracts that have underlying asset as the actual commodity itself. तो क्रूड ऑयल का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उस वो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो एक्चुअल कमोडिटी के ऊपर। तो क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपको पूरी वैल्यू इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। एक्चुअल कमोडिटी आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं खरीद रहे हैं। यू आर बाइंग अ commodity contract of a future date. Since you are buying a commodity contract of a future date, exchange has defined a certain margin money that needs to be invested so that you can buy or sell those contracts, right? तो वो मार्जिन मनी का एग्जांपल अगर हम समझते हैं, तो जैसे क्रूड ऑयल में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का मार्जिन मनी लगता है। अगर वैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्रूड ऑयल का देखें तो अभी 6,200 के आसपास अगर एक वैल्यू चल रहा है एक बैरल का, तो इनटू 100 यानी 6,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है। उसके अगेंस्ट अगर आपको मार्जिन मनी के तौर पे देखना है, तो आप 6,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 2 लाख या 2,50,000 में बाय या सेल कर रहे हैं। तो निफ्टी या बैंक निफ्टी या एनी अदर एग्जांपल दैट वी टॉक अबाउट, देयर आल्सो यू सी सिमिलर कॉन्सेप्ट देयर। हमने मार्जिन के बारे में समझा, तो नाउ वी वुड आल्सो लाइक टू नो कि भाई इसमें वोलेटिलिटी कितनी है, दिन में कितना तेजी मंदी देखने को मिलता है।
तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, अराउंड 100 टू 150 रुपीस का वोलेटिलिटी जो है आपको अमूमन क्रूड ऑयल में देखने को मिलता है। इसमें आपको फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दोनों अवेलेबल हैं। तो सम ऑफ यू हु माइट बी ट्रेडिंग इन derivative contracts already, so you understand the concept of futures and options. Like I mentioned in the previous slide also, we are talking about commodity contracts being traded on exchange platform that are of future date. एक future आगे के डेट के कॉन्ट्रैक्ट जो है हम आज ट्रेड कर रहे हैं, वो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर और ऑप्शन में डिवाइडेड हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप मार्जिन पे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में टेबल में हमने हाईलाइट किया हुआ है, बीट गोल्ड मिनी हो या सिल्वर मिनी हो, नेचुरल गैस मिनी हो या क्रूड ऑयल मिनी हो, या इसके अलावा जो बाकी कमोडिटीज हैं उसके भी अगर हम देखते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन आपको देखने को मिलता है। तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा, या तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कॉल या पुट में काम करते हैं, उसमें आप जब ऑप्शन राइट करते हैं या ऑप्शन को बेचते हैं और उस टाइम पे मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप एक ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल या पुट ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं, तो वहां पे प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आता है। तो प्रीमियम इज द मनी दैट यू पे टू बाय अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन बी अ कॉल और पुट ऑप्शन। कॉल और पुट के डिटेल में शायद मैं नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज इट विल बिकम अ ऑफ टॉपिक डिस्कशन, बट यहाँ पे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दोनों देखने को मिलेंगे ज्यादातर कमोडिटीज में। और यहाँ पे आपको मार्जिन और प्रीमियम के कॉन्सेप्ट भी सिमिलर टू इक्विटी डेरिवेटिव्स। अगर आप में से कई लोग इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो दिस टेबल टॉक्स अबाउट हाउ द कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स लुक लाइक। अगर हम एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखता है, वो एक टेबल के थ्रू, हम एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we should talk about कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कमोडिटी डेरिवेटिव में, कि how do I use this asset class for my advantage? What are the opportunities that are available? So before we talk about the opportunities that are available in commodity derivative contract, we should also understand what type of participation we see in commodity derivative market. कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। It can be investors, it can be hedgers, traders, arbitrageurs और people who are value chain participant जो physical delivery लेना या देना चाहेंगे। तो अगर सबसे पहला पार्टिसिपेंट के बारे में हम बात करेंगे, इन्वेस्टर। सो इन्वेस्टर कैन बी एनी person who would like to invest in certain commodity contracts. If he has a view, if he or she has a view in a particular commodity, अगर उनके पास नॉलेज है कि अच्छा ये कमोडिटी का वैल्यू जो है आज 100 रुपए है, ये और 3 महीने में या 2 महीने में 120 रुपए होने वाला है, एंड इफ यू साइड दैट अपॉर्चुनिटी, you can decide to buy some commodity contracts like on exchange platform. Similarly, the way you do it for equity derivatives, यहाँ पे investors जो हैं margin money पे करके कोई कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करने का जो प्रेफरेंस रखते हैं, वो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। So you can buy a contract or you can sell a contract and you can hold it for a period of 10 days, 15 days, 20 days or a month, 2 month, 3 months. तो उस दौरान आप कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टेन्योर चाहिए तो आपको रोल ओवर करते जाना रहेगा। तो नॉर्मल जो प्राइस व्यू लेके अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो वो क्लाइंट्स, वो पार्टिसिपेंट जो है कमोडिटी डेरिवेटिव्स को एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एज ए इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। जो सेकेंड कैटेगरी है हेजर्स। नाउ हेजर्स का क्या काम है कमोडिटी डेरिवेटिव्स में? तो hedgers basically are those participants who would like to use this asset class to mitigate their commodity price risk. Hedgers वो लोग होते हैं जिनका कमोडिटीज से कुछ बिजनेस लिंकेज है या तो कुछ लेन देन है कमोडिटीज में, एक्चुअल मार्केट में, स्पॉट मार्केट में लेन देन है। अगर उसका उनको प्राइस रिस्क से बचना है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हैं अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं explain करूं for better understanding of our participants, तो if I'm a jeweler, let's say, and if I hold 10 kg worth of gold jewelry in my store, अब मेरे पास 10 kg गोल्ड ज्वेलरी अगर है एज ए स्टोर में, एज ए ज्वेलर अगर मैं हूँ, तो कमोडिटी में अगर गोल्ड के भाव फ्यूचर में बढ़ेंगे तो हो सकता है मुझे मुनाफा हो, क्योंकि मेरे पास 10 kg गोल्ड है तो उसका भी वैल्यू बढ़ेगा।
अगर गोल्ड के भाव घटते हैं तो क्योंकि मेरे पास 10 केजी गोल्ड पड़ा हुआ है उसका भी वैल्यू घटेगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ये जो प्राइस प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसके वजह से मुझे मुनाफा या नुकसान होने का जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए मैं एक्सचेंज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करूंगा। तो इफ आई टॉक्ड अबाउट हैविंग 10 केजी गोल्ड ज्वेलरी इन माय स्टोर, in order to avoid losing money out of gold prices correcting at global level, I would take counter position. I would pay some margin money and I would sell my 10 kg gold on electronic platform with the help of the derivative contracts that are available. तो मेरे पास 10 केजी गोल्ड दुकान में पड़ा हुआ है, मैं 10 केजी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या वहाँ के जो ऑप्शंस के इंस्ट्रूमेंट है वो पोजीशन में बना लूंगा, काउंटर पोजीशन में बना लूंगा, ताकि अगर भाव गिर जाते हैं तो जितना नुकसान मुझे फिजिकल मार्केट में हो रहा है दैट मनी आई कैन cover by mark to market gains in the derivative contracts, right? So basically I am doing price locking to mitigate the risk of price fluctuations, to avoid the losses in my business. So hedgers normally use this instrument to mitigate the commodity price risk, to avoid losing money out of commodity price fluctuation. उनका ऑब्जेक्टिव इस मार्केट से पैसे कमाना नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को मिटिगेट करना। जैसे इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना होता है, हेजर्स का ऑब्जेक्टिव रिस्क को मिटिगेट करना होता है, क्योंकि वो फिजिकल मार्केट में कहीं ना कहीं उस कमोडिटी से लिंक्ड है। तो उसमें जो फ्लक्चुएशन से जो रिस्क आता है उसको कम करने के ऑब्जेक्टिव से कमोडिटी डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। नाउ द थर्ड participant is the trader. Now trader is a participant who would like to make the most of the day's volatility. Now traders are again categorized into high frequency traders, short term traders, medium term traders, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेडर्स भी विभाजित होते हैं। बट इन जनरल ट्रेडर्स को मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है, जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी देख के उसमें गेन करने का एक ऑब्जेक्टिव लेके वो काम करते हैं। तो दे हैव देयर ओन strategies, they have their own way of learning and looking at the market, and they take short term views and they initiate positions। जैसे अगर कोई कमोडिटी का भाव 100 रुपए पे चल रहा है, उनको लगता है कि अच्छा ये 110 पे जाने वाला है ड्यूरिंग द डे, तो वो 100 पे लेंगे, 110 जाते ही वो बेच देंगे क्विकली। और उनको लगता है कि अच्छा ये 110 से फिर से 100 आने वाला है, तो वो पहले सेल करेंगे, फिर बाद में जब 100 आएगा तो फिर खरीद लेंगे। सो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में प्राइस फ्लक्चुएशन को गेन्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है चाहता है तो वो ट्रेडिंग के तौर पे इस इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकता है। नाउ जब आप ट्रेड करोगे तो आपके पास मुनाफा करने का भी अपॉर्चुनिटी है और नुकसान करने का भी अपॉर्चुनिटी है। इफ योर व्यू गोज राइट यू विल मेक प्रॉफिट, इफ योर व्यू गोज रॉन्ग यू विल मेक लॉस। तो जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस, वो जरूर लगा के करें ताकि आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहे, क्योंकि ये लिवरेज्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन या प्रीमियम पे आप काम करते हैं, क्योंकि लिवरेज यहाँ पे आता है, आपने एक कमोडिटी 100 रुपए का कमोडिटी खरीदने के लिए 10 या 20 रुपए का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। तो अगर वो 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आपने 10 रुपए मार्जिन दे के खरीदा है और वो 100 का भाव गिर के 90 हो जाता है तो आपका 10 रुपए जो दिया है पूरा जीरो हो जाएगा। वैसे ही वो 100 का माल अगर 110 हो जाएगा तो आपने जो 10 रुपए दिया वो 20 रुपए हो जाएगा। सो लिवरेज प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट वहां पे प्रॉफिट में भी या लॉस में भी देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई the implementation of stop loss is something which is crucial and one has to follow the stop losses when participating in derivative contracts. Now arbitrageurs are the participants who would like to capitalize upon the difference in prices of the same commodity across different markets. अगर फिजिकल मार्केट में गोल्ड सस्ता मिल रहा है एक्सचेंज के मुकाबले तो फिजिकल मार्केट में खरीदेंगे और एक्सचेंज पे सेल करके डिलीवरी देंगे, और वाइस वर्सा एक्सचेंज पे सस्ता मिल रहा है तो एक्सचेंज में खरीदेंगे, फिजिकल डिलीवरी लेंगे, और फिजिकल मार्केट में अगर महंगा बिक रहा है तो वहां पे बेचेंगे। सो arbitrageurs are the people who would like to make the most of the price disparity among different markets of the same commodity बोल सकते हैं। तो अगर एक्सचेंज पे 10 रुपए में कोई कमोडिटी मिल रही है और वही फिजिकल मार्केट में 13 रुपए पे बिक रहा है, तो एक्सचेंज पे मैं 10 रुपए में खरीदूंगा और मार्केट में मैं 13 रुपए पे बेच के वो डिलीवरी लेके वहां पे सप्लाई करके मैं अपना 3 रुपए का प्रॉफिट लॉक करूंगा माइनस द कॉस्ट। उनको हम आर्बिट्राजेस बोलते हैं। अभी जो फाइनल जो लास्ट वाला पॉइंट था इस स्लाइड में फिजिकल डिलीवरी वाला, तो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम इंडिया में ट्रेड होते हुए देखते हैं,
तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर फिजिकली डिलीवरेबल एज वेल, बारिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। कमोडिटीज में हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में भी देखा, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और वही अगर हम अदर कमोडिटीज की बात करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम या एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं, तो इनमें फिजिकल डिलीवरी का भी प्रोविजन है। तो अगर किसी को फिजिकल डिलीवरी चाहिए या फिजिकल डिलीवरी उनका एक्सचेंज क्वांटिटी या क्वालिटी पैरामीटर्स को मैच करता है वो है, तो वो फिजिकल डिलीवरी ले या दे सकते हैं। तो इवन फिजिकल डिलीवरी पार्टिसिपेंट्स लाइक पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ value chain, they also participate in this market, and they use this market to take physical delivery or give physical delivery as such. तो इस स्लाइड से हमने ब्रॉडली देखा कि who are the different types of participants who participate in commodity derivative contracts with different objectives. इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, उनको एक व्यू लेके काम करना है, कम पैसा या मार्जिन मनी पे करके मैं कमोडिटी को डिजिटली खरीद करके, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट को डिजिटली खरीद करके एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक होल्ड कर सकता हूँ। मैं जाके फिजिकली मार्केट में गोल्ड खरीदूंगा, उसको वेयर हाउस में रखूंगा या लॉकर में रखूंगा, उसमें रिस्क रहेगा क्वालिटी का या तो थेफ्ट होने का रिस्क रहेगा, वो सब नहीं करना है मुझे। तो मैं कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है डिजिटली लेके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हेजर्स, अगेन आई कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू मिटिगेट द प्राइस रिस्क ऑफ माई फिजिकल होल्डिंग, और मेरे जो फिजिकल एक्सपोजर होगा उसको मैं मिटिगेट करने के लिए यूज कर पाऊंगा। ट्रेडर्स, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है, ग्लोबली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सब, जब हम गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोई भी कमोडिटीज की बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबली ट्रेडेड हैं। तो इनके प्राइस बेंचमार्क भी ग्लोबली होते हैं। तो यानी गोल्ड का प्राइस आपको इंडिया में जो दिखता है, अगर आफ्टर टैक्स देखते हैं तो शायद टैक्सेशन का डिफरेंस रहेगा थोड़ा बहुत, जो बेस प्राइस होगा वो ग्लोबल लेवल पे कॉमन रहेगा। वैसे ही मोर और लेस सारे कमोडिटी का जो प्राइसिंग होता है वो ग्लोबली बेंचमार्क होता है, क्योंकि सारे ही कमोडिटी ग्लोबली प्रोड्यूस और कंज्यूम होते हैं, तो ग्लोबल एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। तो यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन रिलेटेड चीजें भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। आर्बिट्राजर्स, जैसे मैंने बताया, इम्परफेक्शंस इन टू मार्केट फॉर अ सिंपल फॉर अ कॉमन कमोडिटी, वहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिजिकल डिलीवरी भी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को छोड़ के आप बाकी कमोडिटीज में फिजिकल डिलीवरी लेने या देने का प्रोविजन रख सकते हैं। उसी स्लाइड को अगर हम कंटिन्यू करना चाहें कि भाई और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में, तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में 2003 में आया डेरिवेटिव एक्सचेंजेस के द्वारा। तो 2003 यानी हम बोल सकते हैं कि 20-21 साल हो गए हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स को इंडिया में। फिजिकल मार्केट तो सैकड़ों सालों से है, फिजिकली आप कमोडिटी बाय या सेल करते हैं वो तो सैकड़ों सालों से है, बट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस पे डेरिवेटिव मार्केट के तौर पे कमोडिटीज आया 2003 में, यानी 20-21 साल पुराना मार्केट है। और ये शुरू होता है तकरीबन 9 बजे इन द मॉर्निंग, 9 AM टू 11:30 और 11:55 इन द इवनिंग, विच मीन्स commodity markets are active for almost 15 hours a day। जैसे इक्विटी मार्केट हम बोलते हैं कि तकरीबन 6.5 घंटे का आपको टाइम देखने को मिलता है, कमोडिटी मार्केट में तकरीबन 15 घंटे का टाइम देखने को मिलता है। इक्विटी 9:15 को शुरू हुआ, 3:30 बजे बंद हुआ, तो तकरीबन 6.5 घंटे का मार्केट है। वैसे ही कमोडिटी 9 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे तक मार्केट बंद होता है, तो समवे डाउन द लाइन आपको 15 घंटे का अपॉर्चुनिटी मिलता है इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम क्यों ज़्यादा करना पसंद करते हैं, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन मनी या प्रीमियम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो डेरिवेटिव में जो लोग काम करते हैं उनको एक बेनिफिट दिखता है इसमें कि आई डोंट हैव टू पे फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज। आई कैन पे मार्जिन मनी which can range from say 9.5% to say 30, 35, 40%. So if I'm talking about say gold, then there is a margin money which exchange asks close to 10%. तो मैं 1 kg गोल्ड अगर मुझे खरीदना है, 1 kg गोल्ड का वैल्यू अगर 75 लाख रुपीस है, तो मैं डेरिवेटिव एक्सचेंज पे गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट अगर खरीदना चाहूँगा 1 kg का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, तो उसका 10% यानी 7.5 लाख रुपए में 1 kg गोल्ड का मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता हूँ। तो वो एक बेनिफिट जो है लोगों को देखने को मिलता है, बिकॉज नॉट एवरीवन विल हैव 75 लाख रुपीस टू पे एंड बाय 1 kg गोल्ड, राइट। हावेवर क्योंकि ये लिवरेज कहलाता है, आई एम बाइंग 75 lakh worth of gold by paying 7.5 lakh rupees margin, for an example, if we look at it. So I am taking 10x exposure. मैं 7.5 लाख रुपए में 75 लाख का माल ले रहा हूँ, तो 10x का एक्सपोजर ले रहा हूँ, तो मेरा नुकसान या मुनाफा दोनों जो है 10x होगा।
right? So one has to be very careful, and one has to be very careful in terms of deciding what risk appetite you have, and whether this product suits your रिस्क एपेटाइट एंड गोल और नॉट. अगर आपको आपका रिस्क एपेटाइट लो है, तो हम नॉर्मली एडवाइज नहीं करते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने के लिए. अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई है, एंड यू आर वेल वर्स्ड विद द मार्केट, आपने डूज एंड डोंट्स देख लिए हैं, आपको इस मार्केट का रिस्क समझ में आता है, तो देन आई थिंक यू कैन participate in these markets by ensuring that you are trading with stop loss, or you are investing with stop loss. Again, it has to come from your due diligence, और आपका डिसीजन जो है आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे बहुत क्रूशियल रहता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. कमोडिटी में एज ए डाइवर्सिफिकेशन टूल के तौर पे भी देखा जाता है. So when you talk about investments in different asset classes, be it equities or commodities or mutual funds or debt instruments, ideally there is a saying, never put all your eggs in a single basket, right? Like you try to diversify your investment across different asset classes, because by doing that you are reducing your overall portfolio's risk, and at the same time you maximize the possibility of earning higher returns by the way of diversification. So you can look at this instrument as a diversification tool. If you are already investing in equities or derivatives or mutual funds or debt instruments, then this can become that one more asset class in your portfolio. So this can be looked into as a diversification tool as well. Like I mentioned in the previous slide, commodities can also be looked at as a global asset class. Like I mentioned, most of the commodities that are listed on the exchange are globally produced and consumed. So the price benchmarking happens across the country. So the scope for manipulation in pricing is very limited, very very restricted, because most of the commodity prices get benchmarked at global level, and the price references keeps on happening. That is also one of the reason why the markets run for 15 hours a day, because you cannot run 5-6 hours market when the commodities are traded across the globe, and it will have impact on the commodity prices at the domestic level also. तो जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उतना देते हैं, ताकि इम्पैक्ट जो है या क्लाइंट के पास अपॉर्चुनिटी हो या एंट्री या एग्जिट का, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे. सो डाइवर्सिफिकेशन टूल या ग्लोबल एसेट क्लास के तौर पे इसको देखा जाता है. Ease of trading on digital platforms. Now, when we talk about commodities can be at times very bulky. Like if I want to say buy silver, I'll have to, let's say अगर मुझे 30 किलो सोना चांदी चाहिए, 30 kg सिल्वर, तो 30 kg सिल्वर मुझे स्टोर करने के लिए घर पे जगह होना चाहिए. मुझे 10 kg गोल्ड चाहिए, तो अगेन 10 kg गोल्ड मुझे रखने के लिए जगह चाहिए. अगर मुझे 5 टन मुझे 10 टन मान लीजिए टर्मरिक चाहिए, तो मुझे टर्मरिक को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस में जगह चाहिए. मुझे ग्वार गम को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए. तो they can be bulky at times, and अगर आपका व्यू ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का है या रिस्क मिटिगेशन का है, तो आप फिजिकली कमोडिटीज को लेके स्टोर करके कॉस्ट बढ़ाने से अच्छा आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा प्रेफर करोगे. जैसे आज भी आप अगर कैश विड्रॉल करना है, तो शायद आप बैंक में जाके क्यू में लग के आप कैश फिजिकली विड्रॉ करने से बेहतर एक एटीएम से कैश विड्रॉ करना ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि इट सेव्स यू टाइम, it saves you hassle. So again, different preferences. Most of us nowadays use UPI, digitally हम पेमेंट करते हैं for ease of using. So वैसे ही एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं, तो digitally people are able to transact nowadays. So even transaction in commodity contracts can happen on your fingertips, like आप मोबाइल या लैपटॉप से भी आप buy sell कर सकते हैं. So that is also one of the opportunities or benefits of the electronic exchanges, where you can buy and sell commodity contracts on digital platform. Transparency in information, like I said, global asset class है, जो भी global level पे हो रहा है उसका impact commodity prices पे जो हो रहा है वो सबके सामने है. तो यहाँ पे जैसे अभी का जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो पहला वाला जो अपना रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, सो समवेयर डाउन द लाइन उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कमोडिटी के सप्लाई और डिमांड पे, उसके बेसिस पे प्राइसेस कैसे ऊपर या नीचे हो रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन ग्लोबली अवेलेबल रहता है. तो ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल जाता है. अगर हम एज ए कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, तो थोड़ा बहुत डूज एंड डोंट्स पे ध्यान रखना जरूरी है,
क्योंकि एक लिवरेज प्रोडक्ट है तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली हाई होता है। तो जिनका रिस्क एपेटाइट लो है, वी नॉर्मली टेल देम नॉट टू पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। जिनका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है, yes, you can obviously participate in these markets backed by some proper do's and don'ts or best practices being followed. So some of the best practices that we have listed here are कि do proper homework before starting the trade investment, like क्योंकि लिवरेज प्रोडक्ट है, आप 100 रुपए का माल 10 रुपए में या 20 रुपए में ले रहे हो, तो जो रिजल्ट होगा वो 5x या 10x होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो 5x होगा, लॉस हो रहा है तो 5x होगा, 10x होगा। तो होमवर्क करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इक्विटी व्हेन यू टेक स्टॉक्स डिलीवरी, देन यू आर पेइंग फुल मनी एंड यू आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ दैट स्टॉक। तो आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा है, तो 1 लाख रुपए आपने पूरा इन्वेस्ट किया हुआ है। वो 1 लाख का वैल्यू अगर 90,000 होता है तो आपका 10,000 का नुकसान है। तो यू विल सी इन परसेंटेज टर्म यू लॉस्ट 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर वही 1 लाख का वैल्यू 1,10,000 हो जाता है तो आप बोलोगे कि अच्छा 10,000 का कमाई हुआ लाख रुपए पे, तो 10% गेन हुआ। डेरिवेटिव में आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है 10,000 में लिया हुआ है, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे, वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू अगर 1 लाख से 90,000 हो गया तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो यूल से कि अच्छा माई इन्वेस्टमेंट बिकेम जीरो, माई लॉस इज 100%, राइट। लाइकवाइज आपने 10,000 इन्वेस्ट करके लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो 1,10,000 हो गया, तो यूल से कि अच्छा मेरा 10,000 20,000 हो गया तो 100% ROI हो गया। सो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा कि इफेक्ट जो है वो 10x हो गया इस एग्जाम्पल में। तो वन हैज टू बी केयरफुल और समझ के थोड़ा बहुत होमवर्क करके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट डूज एंड डोंट्स में फर्स्ट डूज जो है कि भाई डू प्रॉपर होमवर्क एंड गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन। Second है start with smaller contracts or mini contracts. Most of the commodities, most of the active commodities have mini contracts. Now mini contract का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कम पैसे में ट्रेड कर सकते हो। एक रिटेल पार्टिसिपेंट जो है बिना ज्यादा क्वांटिटी बाय किए या सेल किए काम कर सकते हैं। टू लर्न यू कैन गो फॉर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जैसे अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो आई वुड प्रेफर लर्निंग स्विमिंग मे बी एट अ डेप्थ ऑफ 4-5 फीट मैक्सिमम। अगर मैं सीखने जाऊंगा और एकदम से समंदर में छलांग लगाऊंगा तो रिस्क बढ़ जाता है। तो लाइकवाइज mini contracts are available for participants who want to learn about these instruments by buying and selling smaller contracts, right? तो कम रिस्क लेके आप अगर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इवन दो यू मे बी हैविंग मनी टू ट्रेड इन द रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ideally if you are new to the market, start with mini contracts so that you get gist and get a feel of the instrument, and उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस इंस्ट्रूमेंट वेदर इट सूट्स योर रिस्क एपेटाइट और नॉट। अगर नहीं है तो आप बिना आपके हाथ जलाए बाहर हो सकते हो। अगर आपको सूटेबल लगता है तो देन ऑब्वियसली यू कैन स्केल अप द ट्रांजैक्शन बाय मूविंग इनटू द रेगुलर लॉट। It's up to you. Always define target and stop loss before entering a trade. So now this is something which is very important when it comes to derivative trading. A lot of traders or investors, they tend to only keep the target in mind. They never think about risk. मैं ये इंस्ट्रूमेंट आज खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 100 रुपए का वैल्यू 120 रुपए होगा, तो मेरा टारगेट है 20 रुपए कमाना। इतना ही सोच के एंट्री ले लेते हैं। द मोमेंट वो स्ट्रैटेजी गलत हो जाता है, जैसे मैंने 100 रुपए में खरीदा समझ के कि 120 हो जाएगा, बट वो 90 हो गया, तो दैट्स व्हेन पीपल टेंड टू डिसाइड कि अच्छा ये तो अभी लॉस में आ गया तो चलो होल्ड कर लेते हैं। तो 90 का 80 हो जाता है, तो अभी बोलते हैं कि भाई मैं 90 में नहीं बेचा तो 80 में क्यों बेचूं, तो अभी भी होल्ड कर लेते हैं। वो 70 हो जाता है या 60 हो जाता है, 50 हो जाता है। तो दैट पर्टिकुलर कमोडिटी सप्लाई डिमांड इज supporting the prices to go down further, there's no point in holding that position beyond certain level. आपने पोजीशन लिया था 20 रुपए कमाने के लिए, उसमें 50 रुपया या 60 रुपया या 80 रुपया गंवाने का कोई मतलब नहीं है। That cannot be called as a good financial decision. So always define your target. At the same time, you should also define your stop loss. जब आपने 20 रुपए कमाने के बारे में डिसाइड किया हुआ है, तो आप 5 रुपया या 8 रुपया या 10 रुपया मैक्सिमम लॉस का भी लिमिट रखें, जिसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं, ताकि आपका डिसीजन सही हुआ आपको 20 रुपये मिलेगा, आपका डिसीजन गलत हुआ तो आपका 5 या 10 रुपये नुकसान हो जाएगा, आप एग्जिट कर जाओगे। आप अगले ट्रेड को अगेन कैलकुलेट करके ले सकते हो। तो ऑलवेज डिफाइन योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। Most of the clients who are on the losing side, they are on the losing side just because they do not put stop loss.
So this is something which one should avoid. बेस्ट प्रैक्टिसेस में इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत क्रूशियल होगा कि स्टॉप लॉस लगा के ही हमेशा ट्रेड करें. मेंटेबल अभी एक तो स्टॉप लॉस लगाना एक बात हो गई. अब जो चौथा पॉइंट है जो मेंटेन फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका क्या मतलब है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटेनिंग अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, always make sure कि your reward risk ratio is favorable. When I say favorable, अगर आपको 5 रुपए कमाना है तो आप 2 रुपए का रिस्क लो, आपको 10 रुपए कमाना है तो आप 4 रुपए का रिस्क लीजिए, या आपको 20 रुपए कमाना है तो आप 8 या 10 रुपए का रिस्क लो. दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स दैट आपका रिवॉर्ड शुड बी एटलीस्ट 2x ऑफ योर रिस्क. अगर आप वैसे कॉल्स ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए. आई डू अंडरस्टैंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल होना चाहिए. आपका रिवॉर्ड जो है आपके रिस्क से नॉर्मली बड़ा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 20 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ. इट डज नॉट मेक अ गुड स्ट्रेटजी. सो वन हैज टू बी केयरफुल विद दैट पर्सपेक्टिव. Fifth point, again, follow discipline, avoid over leveraging. A lot of clients tend to go aggressive when it comes to derivative trading. तो डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है. यू शुड डिसाइड व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम रिस्क यू कैन टेक इन अ डे, एंड इफ दैट रिस्क लिमिट हिट्स देन stop trading that day. There's a new day, new opportunity. You can again review your strategy, your way of trading, and then you can again build a position the next day. Some people, if they lose money, they try to trade further and try to recover that loss, ending up losing more money. So डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है. ओवर लिवरेजिंग भी नहीं करना है. व्हेन आई से ओवर लिवरेजिंग, अगर मेरे पास अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो मैं 1 करोड़ का माल अभी लेना है, वो भी नहीं होना चाहिए. अगर आपका रिस्क एपेटाइट अवॉइड करता अलाउ करता है सिर्फ 10 लाख का ट्रेड करने का, तो 10 लाख में ही ट्रेड कीजिए. पैसे हैं बोल के 1 करोड़ का ट्रेड करने की नीड जो है भारी पड़ सकती है, तो उसको ओवर लिवरेजिंग नहीं करना चाहिए. Avoid being a compulsive trader. Again, on the similar line, if there is an opportunity, then obviously you can look forward to it. But if there is no opportunity, then you can avoid trading, right? For you can confirm if I'm audible. Okay. I think my video got vanished for 5-10 seconds, but I think we are back online. So always make sure कि आप compulsive trader न बने. That point is what I wanted to highlight. So basically, यही हमारा एक view था. अगर people who have joined us lately, if you give me 1 minute to rewind what all things we have covered. We talked about what is the meaning of commodity. Commodities are nothing but raw materials that have a value, and commodities are traded in the physical market, in the spot market, and commodity contracts are listed on electronic markets as well. Commodity markets in India on the derivative front came in 2003, so it's a 21-year-old market in India on the derivative front. If I'm talking about. Commodities are broadly categorized into 4 segments: precious metal, industrial metal, energy, and agricultural commodities. Some of the examples we have highlighted here. In terms of commodity exchanges, we have MCX, NCDX, NSE, and BSE. These are the exchanges. Even there are other exchanges that offer, but I have only highlighted the examples of some prominent main commodity exchanges here. How the commodity contracts look, how the commodity derivative contract looks. Again, we have taken some examples. Again, I'm saying these are not recommendations. These are the examples of a commodity contract, how they look. We have, say, crude oil mini, natural gas, gold mini, silver mini. Likewise, many commodity contracts. They come in lot sizes. Standardization of these contracts are already done at exchange. You can buy or sell as per the quantity that is decided by the exchange, which we call it as lot. We talked about the concept of margin when it comes to future contracts or writing options. We also talked about days volatility for just a example of days volatility for a particular commodity. We also talked about future and option contracts being active for most of the commodities. So people who prefer trading in future contracts, yes, you can find opportunity here. Participants who prefer trading in option contracts like call and put, yes, even call put
and option contracts are available in these commodities. We talked about different types of participants who make the most of this asset class. The participants again can be categorized into broadly five groups: investors, hedgers, traders, arbitrators, and people who are value chain participants who take or give physical delivery. We also talked about the opportunities that people look at it, as a 15-hour market availability in a day. Concept of margin and premiums obviously helps them leverage on the commodity contracts. It can be looked into as a diversification tool. It's a global asset class traded across the globe. Most of the broking houses are providing trading on commodity exchanges on digital platforms. Even we have digital platform accessibility for trading in commodities. And again, commodity markets or contracts are transparent in nature because they're all globally benchmarked. We also talked about the basic do's and don'ts one has to look into before participating into this segment, because it's a leveraged product. So ideally, one should make sure that you do the due diligence before participating in the leveraged product that we have here. I think I have talked about 40 odd minutes. If you have any queries, you can connect with us on the numbers that we have highlighted here. If you want to know more about commodity markets, if you want to get news updates, global happenings, the recommendations, then you can subscribe to our Telegram channel on Commodity Focus by Kotak Securities. You can go to your Telegram app and just search Commodity Focus by Kotak Securities, and you can get yourself enrolled if you're a Kotak Securities customer, and you can get access to the day-to-day happenings or the research related views on this channel to have your knowledge broad based, and to further understanding. You can connect with us on the numbers that we have highlighted here. So I would request all the participants to please go through the disclaimers again. I'm just going to run through the disclaimer so that you can pause and you can view the disclaimer again at a later time. These are the disclaimers which are very crucial. As an investor, you should know about the disclaimers so that you take calculated decisions. Some of the websites that you can refer to are also highlighted here. Some of the contact numbers where you can connect if you have any query are also highlighted here. So I think I'm done with the presentation as such. So I would like to take Q&A. If you have any questions, you can type in our comment section. I can see many of you have already posted your questions. I'll try to take maybe some 5-6 questions one by one. I'm just scrolling up so that I can take the first question first. अच्छा, यस, आई मीन आपने पूछा है कि आप कॉल्स रिकमेंडेशंस वगैरह कोटक सिक्योरिटीज देता है क्या? यस, we have our in-house research desk for commodities, and they do share their recommendations after doing the research. टेक्निकल और फंडामेंटल रिसर्च अवेलेबल है और आपको ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस वगैरह मिलेंगे. अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें जो नंबर्स हमने हाईलाइट किया था वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, एंड दे विल मेक श्योर कि यू स्टार्ट रिसीविंग द रिकमेंडेशंस एज सच. थोड़े बहुत क्लाइंट्स ने कमोडिटी का व्यू वगैरह पूछा है. ऑब्वियसली दिस इज अ एजुकेशनल सेशन, सो अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी एबल टू कवर दोस क्वेश्चंस टुडे. I think research team will be in a better position to answer those questions. One client has highlighted, commodity means too much risk unless you are trained under able hands for 1 year. मैं भी वही थॉट रखता हूँ सर कि लिवरेज प्रोडक्ट है. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो लिवरेज प्रोडक्ट से थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. लाइक आई सेड, डूज एंड डोंट्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. Without knowledge, trading in derivative instrument can be risky, and one should avoid derivative instrument if you are very new and if your risk appetite is low. तो आप ड्यू डिलिजेंस करके प्रॉपर होमवर्क करके काम करेंगे तो बेटर है. जैसे आप गाड़ी एकदम से खरीदते ही रोड पे नहीं चलाएंगे. अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप एकदम से नदी में छलांग नहीं लगाएंगे. आप पहले सीखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, एंड देन यू गो फॉर दैट
जंप इन दैट रिवर वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं तैर सकता हूँ, वैसा वाला चीज़ है। आप गाड़ी भी तभी निकालोगे जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने सीख लिया है। वैसे ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, आप थोड़ा बहुत मिनी कॉन्ट्रैक्ट से टेस्ट कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग से टेस्ट कर सकते हैं। वंस यू आर कॉन्फिडेंट देन मे बी यू कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। इट्स बेटर टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड ऑल्सो सेंड दिस ऑन ग्रुप। सर ये अवेलेबल रहेगा, आप कमोडिटीज वीडियोस ऑन कोटक सिक्योरिटीज या बाय कोटक सिक्योरिटीज टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, तो इसको आप कभी भी रिपीट करके देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो यू कैन गो बैक एंड यू कैन गो थ्रू द कंटेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। इफ यू हैव कम लेट या कुछ आपको और देखना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक क्लाइंट ने पूछा है कि आप फंडामेंटल रिपोर्ट बाय या सेल पे देते हैं क्या? यस, रिसर्च डेस्क है, तो वो ग्लोबल फंडामेंटल्स को स्टडी करके क्या निष्कर्ष उसका निकल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका एक रिपोर्ट जो है बनता है। आपको चाहिए तो आप जो नंबर्स दिए गए हैं या जो ईमेल आईडीज हमने पॉपुलेट किया था वहाँ पे आप हाईलाइट कीजिए। We would add to the group so that you start receiving our reports on commodities as well. अगेन और एक क्लाइंट ने बोला है कि रिकमेंडेशंस, यस हमारा इन हाउस रिसर्च डेस्क है सर, आप कनेक्ट कीजिए, आपको रिकमेंडेशंस वगैरह जो चाहिए वो आपको रिसर्च डेस्क से मिलना शुरू हो जाएगा इफ यू आर आवर कस्टमर, इफ यू आर आवर क्लाइंट। मैंने शायद हिंदी और मिक्स दोनों में किया है। एक क्लाइंट बोल रहे हैं कि भैया आप इंग्लिश में ज़्यादा बात कर रहे हो, तो मैंने कोशिश किया है सर कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्स में करूँ। I'll keep that in mind। अगर आई थिंक एक आध सेशन हम प्योर हिंदी में कर लेंगे। अब प्योर हिंदी में करेंगे तो हो सकता है कई लोगों को हिंदी नहीं आती होगी, उनको नहीं समझ में आएगा। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कीप आवर वेबिनार्स इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, बट योर सजेशन इज वेल टेकन सर। आई थिंक एक या दो और क्वेश्चंस लेंगे। कमोडिटी में एक्सपायरी के नज़दीक ट्रेड करना एडवाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ देखिए, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपायरी यानी क्योंकि ज़्यादातर कमोडिटीज़ डिलीवरेबल हैं, तो एक्सपायरी के दौरान लिक्विडिटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेड करने वाले हैं वो अगले कॉन्ट्रैक्ट मूव कर जाते हैं। तो करंट कॉन्ट्रैक्ट आपका थोड़ा इलिक्विड हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर डिलीवरी लेने या देने वाले क्लाइंट बच जाते हैं। तो जितना आप नज़दीक एक्सपायरी के जाएंगे, आपको कोशिश करना है कि आप अगले कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर हो जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक दो क्लाइंट ने रिसर्च का तारीफ किया है, ऐप का भी तारीफ किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। कमोडिटी सेगमेंट में मार्केट प्राइस पे बाय सेल नहीं होता है। ये एक फीचर है जो कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है रिव्यू कर रहा है सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन के स्ट्राइक्स हैं जो इलिक्विड हैं। तो मार्केट ऑर्डर का एनेबल रखना कई बार क्लाइंट्स को रिस्क में लेके जाता है। जैसे अगर बायर 10 रुपए पे है, सेलर 50 रुपए पे है और आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया तो आपका 50 रुपए पे ट्रेड हो जाएगा। तो लिमिट ऑर्डर इसलिए रखा है ताकि आप लिमिट ऑर्डर डालते समय आपको दिखेगा कि 50 रुपया पे बाय होने वाला है, तो आप उस टाइम पे कॉल ले सकते हो कि भाई ये 50 रुपए पे मुझे बाय करना है, या वो प्राइस मुझे मॉडिफाई करके 20 रुपए करना है या 25 रुपए करना है। तो बहुत सारे जो स्ट्राइक्स हैं वो इलिक्विड हैं, तो क्लाइंट्स को रिस्क ना हो इसीलिए मार्केट ऑर्डर जो है हमने डिसेबल करा हुआ था। बट आई थिंक टीम रिस्क टीम जो है इसको कैसे एनेबल कर सकते हैं बैक्ड बाय सम सेफ्टी फीचर्स, वो देख रही हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड कम आउट विद market price feature also with added safety. I think I'll take maybe one more question. ओके, आई थिंक एक क्लाइंट ने डिलीवरी का पूछा हुआ है, तो सर यस, फिजिकल डिलीवरी लाइक आई सेड नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को छोड़ के बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में फिजिकल डिलीवरी का भी प्रोविजन है। तो अगर आप वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट है या तो आपको वैसे ही गोल्ड का डिलीवरी लेना है या सिल्वर का डिलीवरी लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए या तो ज्वेलरी बनाने के लिए, तो भी आप कर सकते हैं। आप मतलब डिलीवरी बेस्ड काम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक विद दैट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई विल ट्राई टू कम बैक टू दोज क्वेश्चंस। आपके कुछ सवाल रहेंगे तो यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डालिए। विल ट्राई टू रिप्लाई दोज कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट। मैं शायद 5-6 सवाल ही ले पाया। सो
once again, I would like to thank all of you for giving your valuable time to us. We would like to do such more events, every week, every month, so that we try to cover the topics that our valued customers would like to listen from us. थोड़े क्लाइंट्स का फीडबैक आता है कि एडवांस लेवल पे भी आप कमोडिटी में वेबिनार कीजिए, तो वी वुड लाइक टू टेक सच टॉपिक्स दैट आर meant for maybe pro traders also, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन मोरलेस उन पार्टिसिपेंट्स को ध्यान में रख के बनाया हुआ था जिनका जानकारी या जो नए हैं कमोडिटीज को लेके, कमोडिटी डेरिवेटिव का मार्केट को नए हैं, उनके लिए हमने ज़्यादा फोकस करके रखा था. बट for sure we will also come out with videos for pro clients के how they can possibly use best practices to make the most of this opportunity which is available. So we have shared our contact details in the webinar itself. You can just go back and you can see those numbers and you can call us and we will be more than happy to assist you. For now, me Sunil Katke from Kotak Securities saying thank you and have a great day ahead. Bye bye.